good afternoon to everyone. And the first and the yeah, thank you. And the first and the foremost thing is I am very much jealous of from the all of you, because if you see where I come from, where I have studied, especially the government school where there is no such infrastructure, there is no such kind of the facility. So the first and the foremost, I am very jealous from you. So this gives you opportunity to think about yourself, to thank your parents, to thank your teachers, that you have such a long privilege टू स्टडी फ्रॉम ईयर. क्योंकि मुझे लगता है कि यदि मैंने यहाँ से पढ़ा होता तो शायद मेरी जर्नी कोई और अच्छी होती. तो मैं और मेरे जैसे कई सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से आते हैं. पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम चौधरी विपुल भाई करमन भाई है. मोस्टली आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने यूपीएससी के बारे में सुना होगा. कई सारे बच्चे को पता भी नहीं होगा कि आईएएस और आईपीएस क्या होता है. So allow me to ask questions. How many are you aware about the UPSC or IAS or IPS? Oh, so many of you. And कितने लोगों का ड्रीम है IAS और IPS बनने का? अच्छा, और क्या क्या ड्रीम है लोगों का? साइंटिस्ट बनने का? ओह वाओ. एंड एनी अदर? क्रिकेटर. वाओ. स्पोर्ट कल्चर इज़ वेरी हाई इन दिस स्कूल. आई गॉट टू नो दैट. Any other goals you want to share? Air Force. Apart from the Air Force, Pai is very dedicated to join the Air Force. So I would like to share my story, where I came from, what I have studied. Basically, UPSC is about the Union Public Service Commissions. UPSC gives opportunity to serve the nations by giving the certain posts like the Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Revenue Service, Indian Foreign Service, Indian Forest Service, and there are 23 other services where you can join by giving the UPSC exam. UPSC exam is part of the 3 schedules. One is the prelims, second is the mains, and the third is the interview. Prelims is combined of the GS paper and the CSET paper. The mains is about the 9 paper. First is your mother tongue, second is the English language paper, and the 4 GS paper and the 2 optional paper. Optional means which subject you have the proficiency and the expertise. I had a proficiency and the expertise in the political science, so I chose the political science as my optional language. And optional subjects combine the 500 marks. So that is the deciding factor for your career or for your service, which service you will get by choosing the optional subject. After giving mains, you get a chance to appear for the personality test. Personality test is also known as the interview. So it's combined about the 275 marks. So this is the pattern of UPSC कि एक प्रीलिम्स देना होता है, दैट्स कम्स इन द मई और जून. उसके बाद 3 महीने बाद मेंस देना होता है, उसके 3 महीने बाद इंटरव्यू होता है. सो आपको शायद पता हो या ना पता हो, यूपीएससी इज कंसिडर्ड एज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया. सो नीट और JEE दैट आर द पार्ट दैट आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट. बट वंस यू कम टू UPSC you will get to realize कि how toughest this one. So my dream was to become IAS started from the 10th standard. I studied the primary school in the government school in my village also. Then I joined the secondary education in the nearby village. तो हम क्या करते थे, हमारे पास साइकिल थी, तो हम साइकिल से जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहाँ पर जाते थे. वो हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल था. उसके बाद मुझे प्रिविलेज मिला कि मैं गांधीनगर आ सकूं, तो वहाँ भी जो आराधना विद्या विहार सेक्टर 28 में है, दैट इज़ ऑल्सो सेमी गवर्नमेंट स्कूल. तो मैंने अपना पूरा जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट से ही किया हुआ है. दैट्स वाई आई कॉल्ड कि मैं आपसे जेलस हूँ. इतना मुझे प्रिविलेज नहीं मिला कि मैं प्राइवेट स्कूल या इतनी अच्छी स्कूल में मैं पढ़ सकूँ. उसके बाद मैंने गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सेक्टर 15 में है, तो मेरा पूरा स्कूलिंग फ्रॉम द 1 से कॉलेज तक सभी गवर्नमेंट में ही हुआ है. और इस बात जब बताने का एक ये पर्पज़ है कि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज पढ़ने के बाद यदि मैं यूपीएससी कर सकता हूँ तो आप मेरे से 10 गुना आगे ही हो. तो यदि आपको लगता है कि आप यूपीएससी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास पहले से ही प्रिविलेज है. क्योंकि क्या हुआ कि कॉलेज में मैंने एनसीईआरटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी. यूपीएससी की यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो 2 ही फाउंडेशनल बुक्स है, आइदर यू स्टार्ट बाय द एनसीईआरटी या सीबीएसई बुक्स. तो अच्छी बात यह है कि आप उससे तो पढ़ ही रहे हो. तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि यदि आपको यूपीएससी करना है तो अभी से जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उसमें जो भी आपको मोस्टली सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है.
अभी आपने अच्छे से पढ़ा है तो कॉलेज में जाके इसको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुई तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको दिल्ली में जाना होगा। तो मैं 2021 के जो एंड नवंबर मंथ में मैं दिल्ली गया, वहाँ से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहला अटेम्प्ट मैंने ऑलरेडी गुजरात में रह के दे चुका था पर उसमें पास नहीं हुआ। तो मुझे लगा शायद मैं दिल्ली में गया तो चांस ज़्यादा हो गए कि यूपीएससी में मैं पास हो सकूँ। जैसे आपको लगता है कि अच्छा स्टैंडर्ड, एक अच्छी किताब अच्छी जगह से मिलता है, तो हमारे यहाँ ऐसा था कि यूपीएससी करना है तो आपको दिल्ली जाना होगा। तो करोल बाग में मैं 1.5 साल वहाँ तक रुका। तो सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिल्ली से ही दिया, उसमें प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स पास हो गया, मेंस दिया, मेंस पास हो गया, फिर इंटरव्यू आया। अब इंटरव्यू में मेन चैलेंज ये था मेरी पूरी स्कूलिंग गुजराती मीडियम में रही हुई है और प्रॉब्लम है कि यूपीएससी आप 2 ही लैंग्वेज में दे सकते हो, इधर इंग्लिश में या हिंदी में। अभी हो गया है कि आप गुजराती में भी दे सकते हो पर उतना पासिंग रेशियो उतना ज़्यादा है नहीं, और इंग्लिश मेरी सबसे वीक पॉइंट रहा हुआ है, मुझे उतना इंग्लिश आता था नहीं। तो मैंने 2022 में जब इंटरव्यू दिया तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने सिलेक्ट किया और मुझे पता चल गया था कि इंग्लिश मुझे उतना आता है नहीं, फिर भी आई सिलेक्टेड द इंग्लिश एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो आई गोट टू नो कि शायद पास होने का उतना चांस है नहीं। मैंने इंटरव्यू इंग्लिश में दिया और पता चल गया था कि इस बार तो पास नहीं होंगे, मैं वापस फेल हुआ। तो दिस वॉज द सेकंड टाइम फेलर, कि मेरे जीवन में दूसरी बार था कि मैंने फेलर को टेस्ट किया हो। और जब हम फेल होते हैं, आपको भी पता होगा कि जब टेस्ट में या एग्ज़ाम में जितने मार्क्स चाहते हैं उतने नहीं आते तो कितना बुरा लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि पूरा साल हमने प्रिपरेशन की और हुआ नहीं तो क्या होगा। तो फिर अंत में ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, शायद मेरी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम रही होगी। फिर वापस मैंने प्रीलिम्स देने का प्रयास किया। यूपीएससी की एग्ज़ाम हर साल में एक बार आती है, तो वापस मई में आ गई थी। हुआ क्या कि 2022 की जो एग्ज़ाम दी उसका रिज़ल्ट आने के बाद हमारे पास मात्र 5 या 6 दिन ही बचे थे वापस एग्ज़ाम देने के लिए। सो आई हैड नॉट इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। सो अगेन आई फेल इन द प्रिलिमिनरी स्टेज। सो दैट वाज द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर माई लाइफ कि मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा और उसके बाद धड़ाम दे से नीचे आ गया। तो उस टाइम मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। आई ब्लॉक माई डोर, आई रिमेन इन द हाउस फॉर द मोर देन अ मंथ। एवरी डे आई वोक अप, आई क्राई, आई स्लीप, आई वोक अप, क्राई, स्लीप। दैट वॉज द शेड्यूल फॉर द एंटायर मंथ। एंड आई हैव नॉट सच गाइडेंस फ्रॉम द पेरेंट्स और द टीचर्स कि वो मुझे मोटिवेट कर सके। आई हैड टू मोटिवेट माई सेल्फ डेली। तो था कि भाई फेलर मिला है तो 1 महीने के लिए तो ऐसा लगा कि अब शायद दुनिया सर से निकल गई है। फिर भी अपने आप को खुद मोटिवेट किया। मुझे पता था कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि मैं और क्या करूँ। आपके पास देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, यू कैन चूज आइदर जॉइन द साइंटिस्ट फील्ड, एयरफोर्स फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड। आई डिड द बैचलर ऑफ आर्ट्स। सो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था एंड आई हैव ओनली वन ऑप्शन टू गिव द यूपीएससी एंड क्लियर द एग्ज़ाम। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं यूपीएससी क्लियर करके ही रहूँगा। तो 2024 में मेरा 4th अटेम्प्ट था। आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए, दिस वॉज द माई लास्ट बैटल ऑफ माई लाइफ, आई वुड नॉट फेल एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, योर हार्डवर्क, योर डिटर्मिनेशन एंड द कंसिस्टेंट इफोर्ट्स। तो मैंने शुरू किया कि मैं हर दिन जितना पढ़ सकूँ उतना पढ़ूँगा। मतलब मेरे लिए दिन में 2 ही चीज़ करनी थी, पढ़ना, सोना और खाना। उसके अलावा मेरे पास पूरे साल में कुछ नहीं था। आप लोग तो अभी मोबाइल यूज़ करते होंगे, पर वो था कि आपको कुछ जीवन में अचीव करना है, तो मेरे पास उतनी लग्जरी थी नहीं कि मैं मोबाइल यूज़ कर सकूं। तो मेरे दिन का यही शेड्यूल था कि सुबह उठना है, 7 बजे उठना है, 7:30 बजे पढ़ना है, 12 बजे तक पढ़ना है, 12:30 बजे मैं खाने जाऊँगा, 1 बजे वापस पढ़ने बैठूँगा, 4 बजे पढ़ूँगा, वापस 4:30 तक मैं चाय नाश्ता करूँगा, 4:30 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है, वापस 8 बजे डिनर करना है, 8:30 बजे वापस पढ़ना है और 12 बजे। तो मॉर्निंग में हमारी लाइब्रेरी खुलती थी 7 बजे। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू ज्वाइन द लाइब्रेरी। और लास्ट में 12 बजे ख़त्म होती थी तो मैं सबसे लास्ट में रहता था लाइब्रेरी बंद करने के लिए। और ये कंटिन्यूस पूरे साल तक चला है। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो आपको आइडिया आ जाता है कि जितनी मैंने मेहनत की है मुझे परिणाम मिलेगा। तो 2024 में मैंने पहला प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस दिया, मेंस हो गया। अब मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैंने इंग्लिश, मेरी उतना मोड ऑफ कम्युनिकेशन उतना अच्छा है नहीं, तो आई वुड रेक्टिफाई माई प्रॉब्लम
रेक्टिफाई माई मिस्टेक, तो मैंने हिंदी को चॉइस किया एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन और मैंने हिंदी माध्यम से इंटरव्यू दिया। एंड in the 2025 the result came and I got the all India rank 348. And after getting the selections I was sure that I would get the prestigious job Indian Police Service, which is known as the IPS. How many of you watched the 12th Fail movie? Oh, so many. सो जो 12th फेल मूवी में जो ऑफिसर होता है उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस कहा जाता है। अब मुझे लास्ट ईयर ही वो मिल गया था, पर था प्रॉब्लम ये कि मुझे एक सिंगल हैंडेडली मोटिवेशन यही था कि मुझे जीवन में जो गोल के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था दैट वाज द IAS। आई वॉज हैप्पी विद द IPS, पर मुझे था कि यदि मैं थोड़ी प्रिपरेशन करूँगा तो मैं शायद IAS हो जाऊँगा। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वंस यू गेट द प्रेस्टिजियस जॉब कॉल्ड द IPS, उसके बाद IAS के लिए वापस अटेम्प्ट देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। स्टिल आई चोज द राइट पाथ, आई वॉज वेरी डिटरमाइंड, तो मैंने लगा कि एक बार और अटेम्प्ट दे देता हूँ। तो 2025 में वापस मैंने अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, और पता था कि एक बार इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो गया था, तो आई वॉज वेरी श्योर कि इंटरव्यू भी अच्छे से जाएगा। एंड द रिजल्ट केम इन द 2026 अप्रैल 2026 आई गोट अगेन द ऑल इंडिया रैंक 115। अबाउट UPSC में हर साल 700 से 800 बच्चे पास होते हैं, और मैंने मेरे कई सारे दोस्त जो इस बार पास हुए उनसे मिला, और कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने IIT किया हुआ है, कई सारे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्कूल या आउट ऑफ कंट्री पढ़े हुए हैं, फिर वापस UPSC दिया और उनका रैंक में देखूँ तो 700, 800, 600 उस अराउंड होता है। तब मुझे लगता है कि मैं पता नहीं शायद मैंने मेहनत भी ज़्यादा की है, पर सबसे उससे ज़्यादा मेरा लक भी शायद फैक्टर रहा है कि मुझे इतनी अच्छी रैंक मिली है। क्योंकि IIT में आप सबका, कई लोगों का ख्वाब होगा कि IIT ज्वाइन करना। मुझे IIT के बारे में 12th कंप्लीट करने के बाद पता चला, तो आप समझ सकते हो कि अवेयरनेस की कितनी कमी रही हुई है। मेरी लैंग्वेज गुजराती थी, और दिल्ली में या UPSC में कहीं गुजराती उतना चलता है नहीं, तो लैंग्वेज वॉज ऑल्सो अ बैरियर। मेरे पास उतना गाइडेंस था नहीं। पहले मैंने इंटरव्यू में इंग्लिश रखा, फिर गुजराती रखा, फिर हिंदी रखा, तो उतना गाइडेंस भी नहीं था। ना मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है, मैंने सब सेल्फ स्टडी से पढ़ा हुआ है। सो देयर वेर मैनी बैरियर्स इन माई UPSC प्रिपरेशन, स्टिल I have one goal कि I want to join the IAS, and I want to say the same thing to you. If you decided to join, या if you decided to set any goal, then stick to that goal, irrespective of the circumstances, irrespective of the confidence, irrespective of the preparation. If you are well determined to join or the set a goal and achieve the goal, irrespective of any circumstances, you will achieve that goal. जो कलाम साहब कहते हैं कि सूर्य जैसा बनना है तो सूर्य जैसा तपना भी पड़ेगा। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि मुझे कोई भी गोल छोटा नहीं होता है, सभी गोल अपने हिसाब से बड़े होते हैं। पर मेन प्रॉब्लम ये होता है कि किसी ना किसी को, मान लीजिए मैं आज आया हूँ, तो कल आपने वो गोल सेट कर दिया कि मुझे IAS बनना है, और फिर दो दिन बाद वापस चलेगा, नहीं भाई इतनी तो प्रिपरेशन नहीं होगी तो नहीं बनना है। मेरा एक अभी भांजा है, 5 साल का है, वो हर दिन कहता है कि मुझे मामा की तरह IAS बनना है। जब स्कूल जाने की बारी आई तब कह रहा है कि मम्मी मुझे मामा की तरह नहीं बनना है, मुझे स्कूल नहीं जाना। तो आपका भी ऐसा होगा कि जैसे भाई ने कहा कि मुझे एयरफोर्स में ज्वाइन करना है, तो अभी हमारा गोल, अभी जो नया दिमाग होता है तो नए नए गोल सेट करता है। जैसे जैसे पता चलता है कि जीवन में स्कूल से भी ज़्यादा कई सारी कठिनाइयाँ हैं, तब हमारे गोल अड़बड़ा जाएंगे कि भाई हमारे से होगा या नहीं होगा। तभी जीवन में एक चीज़ याद रखना, जैसे आपकी स्कूल में सबसे पहला फ़ोटो कलाम साहब का है, तो ही वॉज द माई इंस्पिरेशन, ही केम फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनको कई बार फेलर मिला है, मुझे भी मिला है, और आप लोगों को भी जीवन में कई दफ़ा फेलर मिलेगा। दैट इज़ नॉट द बैड थिंग, फेलर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज़ बियॉन्ड द फेलर एंड द सक्सेस। सो आपके दिमाग में होगा कि मुझे कोई जीवन में कुछ भी करना है तो बस जस्ट स्टिक टू योर गोल एंड गिव एवरीथिंग, नॉट जस्ट द 100% बट गिव योर 1000% टू द दैट गोल। ड्रीम अबाउट द गोल, लिव अबाउट द गोल। जब आप सोचने लगो कि मुझे ये बनना ही बनना है, तो वो कहते हैं ना, हिंदी में मूवी में एक है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे लगाने में जुड़ जाती है। तो मैं भी आपसे यही विनती करूँगा कि अभी आपकी उम्र जैसे 11 और 11th और 12th में आओगे
दैट इज़ द प्राइमरी टाइम कि आप अपना गोल लाइफ में सेट करो। और क्योंकि एक बार जो आपने गोल सेट किया उसके बाद 5 साल आपको उसमें ही देने हैं। मैं पिछले 5 साल से एक ही चीज़ कर रहा हूँ, सुबह 8-7 बजे उठता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ, बस पढ़ाई ही कर रहा हूँ। और हर साल ऐसा लगता था कि जब पास नहीं हुए तो लगता था होंगे या नहीं होंगे। आप मान लीजिए कि एक दिन पढ़ना 12 घंटे लगता है कि ठीक है, 2 दिन पढ़ना ठीक है, मैं पिछले 5 साल से 12 घंटे पढ़ रहा हूँ और जस्ट फॉर द वन गोल। आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्टिल आई स्टिक टू माई गोल। और मुझे था कि अभी इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो इफ़ यू हैव अ डिटरमाइंड माइंड कि मुझे कुछ करना ही है, तो मुझे लगता है कि जीवन में कोई भी ऐसी कठिनाई या कोई भी सर्कमस्टांसिस आपको रोक नहीं सकता। मेनली अभी हम बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे बड़ी जो चैलेंज अभी जो हम सामने देख रहे हैं दैट इज़ द फोकस्ड माइंड। अभी आपको जो हम वी वेर लकी इनफ एंड द एवरीवन सिटिंग हियर दे वेर लकी इनफ कि उनके ज़माने में मोबाइल नहीं आया था। आपका जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल। हाउ मैनी ऑफ यू हैव द मोबाइल एज ऑफ नाउ एट होम? अपना खुद का मोबाइल हो, खुद का मोबाइल या लैपटॉप और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो हम जब तक कॉलेज मैंने कंप्लीट नहीं की थी तब तक यू कैन पुट डाउन योर हैंड्स। जब तक मैंने कॉलेज कंप्लीट नहीं की थी तब तक मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं था। एंड दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ फोमो फीलिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग आई थिंक कि जो हमारे साथ हुई थी। जो गरीबी में सबसे अच्छा काम आया कि हमारे पास पैसे, मोबाइल लेने के उतने पैसे थे नहीं, तो अच्छा मेरे घर पर अभी भी टीवी कभी तक आज तक मैंने देखी नहीं है। और अच्छी बात ये थी कि जब ऐसी चीज़ नहीं थी तो क्या थी, मेरे पास किताबें पढ़ी होती थी, मैं किताबें पढ़ता था। तो मेन चीज़ अभी ये हो गई है कि आप जैसे ही स्कूल से छूटोगे, घर जाओगे, मोबाइल यूज़ करते रहोगे। और जो आपको शायद पता हो, हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर अबाउट द डोपामिन रिलीज हार्मोनियम फैक्टर? डोपामिन के बारे में कभी सुना है आपने? जब आप इंस्टाग्राम आईडी किसके पास है? मोस्टली ऑल ऑफ यू हैव। होता क्या है कि जब आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मोस्टली हम रील देखते हैं। जब एक रील देखना स्टार्ट किया तो अच्छी लगी तो आप दूसरी रील देखोगे, दूसरी रील अच्छी लगी तो तीसरी देखोगे। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाते हैं उसकी वजह से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। और डोपामिन आपके दिमाग को जो माइंड कंसंट्रेट माइंड होता है उसको बंद कर देता है। उसकी वजह दैट इज़ द मेन फैक्टर को, उसकी वजह से आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। और हमारे टाइम उतना नहीं था तो उतना बहुत अच्छा है। अब मैं कहता हूँ कि अभी मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, कभी रील देखने बैठते पता ही नहीं चलता 1 घंटा 2 घंटा कैसे चला जाता है। आई हैव द मैच्योर माइंड, स्टिल आई कांट फिगर आउट कि इसको बंद कैसे करना है। तो आपके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है तो यही है कि मोबाइल का यूज़ जितना कम करोगे जीवन में सफलता के नज़दीक उतना जाओगे। आपको मानना है तो मानिए, या 5 साल जब बर्बाद हो जाएंगे तब पता चलेगा कि 5 साल जीवन के जो बर्बाद हुए वो कहाँ हुए हैं। एक ही चीज़ होगी, मोबाइल। तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है, आइदर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है 12th स्टैंडर्ड तक, या करना भी पड़े मुश्किल से तो डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए कि मैं आधा घंटा या 1 घंटा दिन में यूज़ करूँगा और उसके बाद जो स्टडी है उस पर ध्यान देना है। तभी आपका जो दिमाग है वो फोकस स्टडी पर ध्यान रख सकता है। हाउ मैनी ऑफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली? सो आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन कि पढ़ाई तो होती रहेगी, जो जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जनरल अवेयरनेस अबाउट द एवरीथिंग। सो आई वुड सजेस्ट ऑल्सो द प्रिंसिपल मैम कि हर दिन जो डेली हैबिट जो स्टूडेंट्स में होनी चाहिए दैट इज़ द न्यूज़पेपर रीडिंग। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वो गांव की बहुत पिछड़ी स्कूल थी, पर एक अच्छी चीज़ ये थी कि हर दिन हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला जाता था। तो हम हमारे जो प्रिंसिपल और जो टीचर है उनको थैंकफुल करते हैं कि शायद उन्होंने नहीं किया होता तो जो क्यूरियसिटी का जो दिमाग आया वो शायद डेवलप नहीं होता। तो मैं आप सभी को ये कहूँगा कि आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़िए, कौन सा भी, गुजराती, हिंदी या इंग्लिश। जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे उतना जो वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में आपको अवेयरनेस मिलेगा। दूसरी चीज़ होती है कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना। कई लोग होंगे जिन्होंने साइंस किया हुआ है या कॉमर्स करना चाहते हैं, पर जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं वो आपको लाइफ में भी काम आएंगे, और जिनको यूपीएससी करना है उनके लिए तो दैट इज़ द फंडामेंटल थिंग, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो मुझे इस स्कूल में आके पता चली कि दैट इज़ द पार्टिसिपेशन इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सर वॉज वेरी कीन अबाउट द forcing you to participate in the extracurricular activity, so I was very happy about that thing। मुझे स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ये पता चला कि जीवन में जो भी समस्याएं आती है हम स्कूल में जो पढ़े उससे समाधान नहीं आता है।
जीवन में जो समस्या है उसका समाधान, जैसे आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, उससे जो जीवन में लाइफ लेसन मिलेगा वो आप लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो एज अ बिग ब्रदर आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जहाँ भी, स्पेशली स्पोर्ट्स हो गया, या लेक्चर लेना है, या स्पीच में बोलना है, या कुछ भी हो जाए, नाटक हो रहा है, कुछ भी हो, जब भी आपको लगे कि आपके पास मौका आया है, प्लीज़ 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 पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। दैट विल क्रिएट अ डेवलप द पर्सनालिटी। और जो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा जो चेक होता है इंटरव्यू में, दैट इज़ द होलिस्टिक पर्सनालिटी। सर से हमारी बात हुई तो मैंने देखा है कि स्कूल में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है दैट इज़ ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमारी स्कूल में उतना था नहीं, पर वो है कि हमने जीवन की जो ठोकरों से सीखा है, शायद आप पहले से ही सीख जाओगे, तो सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर दीजिएगा। बाकी किसी को यूपीएससी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। बाकी आई अगेन रिपीट द सेम थिंग, यू आर वेरी प्रिविलेज, यू आर स्टडिंग इन सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। सो जीवन में हम इन किसी से भी पूछ ले कि आपको अगर मौका मिले तो जीवन में क्या चाहोगे, तो हम वही चाहेंगे कि हमें हमारा बचपन वापस मिल जाए। तो आप जो चीज़ हम चाहते हैं वो आप जी रहे हो, तो आप मतलब 10 साल बाद आपको भी आपका गोल वही होगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, वापस बचपन में चले जाए। तो आप जिस चीज़ में जी रहे हो उसको सबसे एंजॉय करो। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, एंजॉय वेरी वेल। थैंक यू। If you have any questions regarding anything, especially related to study, UPSC preparation, or the mental status or the stability, so many problems we encounter during this study, you can ask any question. जो बच्चा सवाल नहीं पूछता उसे क्यूरियस नहीं माना जाता है, तो उतना शाईपन नहीं रखना चाहिए कि आई एम वेरी शाई सो आई कांट आस्क क्वेश्चंस। जितना क्वेश्चन आप पूछोगे दैट इज़ द साइन ऑफ योर इंटेलिजेंस। यस ब्रदर, you can ask questions by sitting also. That yes. What should be our motivation to study? Like what should we do, avoid and do, avoid and what should we focus on? Can you tell us? Yes. So specially, what is your standard? 9 स्टैंडर्ड। जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है 12th स्टैंडर्ड तक उतना मोटिवेशन आता है नहीं। तो जो मेन मोटिवेशन आता है कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। और हमारे लिए, जैसे मैं अपना बताऊं, 9th स्टैंडर्ड तक जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मोस्टली वही हुआ है कि चीटिंग करके पास हुए, ऐसे एक दोस्त दूसरे के दोस्त में जो लिख रहा है वो क्लियर कर दिया। 10th स्टैंडर्ड में मेरे लिए मोटिवेशन क्या था कि हमारे गाँव से कोई भी बच्चा नहीं था। मोस्टली ये होता है कि जो टॉपर होते हैं उनके नाम बोर्ड पर लिखे जाते हैं। हमारे गांव से कोई भी बच्चा नहीं था जिसको बोर्ड, जो टॉपर्स का बोर्ड होता है उस पर नाम नहीं था। तो आई हैड सिंगल मोटिवेशन कि ये बोर्ड में हमारे गांव का एक नाम होना चाहिए और वो नाम मैं लाऊंगा। तो इस तरीके से आप अपना मोटिवेशन डेवलप कर सकते हो। हमारी जो 9th और 10th की जो स्कूल थी वो 20 या 25 साल हो गए थे। तो 20-25 साल में कोई भी हमारे गांव का बच्चा 10th में टॉप नहीं किया था। तो मेरे लिए ये मोटिवेशन था। तो आपके लिए अपना मोटिवेशन खुद हो सकता है कि मुझे शायद नीट करनी है, JEE करनी है, या कोई जैसे एयरफोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ना होगा। प्रॉब्लम अभी क्या होती है कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ पर हो रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। टाइम वेस्ट 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा होगा। पहली चीज़, आपको जो बैड फ्रेंड सर्कल मिला है उसकी वजह से आपको एक गप्पे मारना है, घूमने जाना है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा होगा। और दूसरा होगा कि मोबाइल का आप यूज़ कर रहे हो ज़्यादा। तो ये 2 चीज़ आप अवॉइड करोगे। जीवन में यही होता है कि जितना अच्छा फ्रेंड सर्कल आपको मिला, और मोस्टली स्कूल टाइम में यही होता है कि अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला तो आप अच्छे से पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे। और गंदा सा फ्रेंड सर्कल मिला तो वो है कि वो बैक बेंचर हम कहते हैं कि लास्ट तक फिर वही रहता है कि जीवन में भी बैक बेंच ही रह जाते हैं। तो वो है कि फ्रेंड सर्कल अच्छा रखिए, और जो मोबाइल का ओवर यूज़ कर रहे हैं उसको कम कीजिए। यू विल गेट द मोटिवेटेड। Yes, please take the mic. How many attempts are there for UPSC exam? So there are different attempts for the different category. If you belong to the general category, if you have the 6 attempts. If you belong to the OBC, you have 9 attempts. If you belong to the SC and the ST community, you have unlimited attempts till the age completion.
So I belong to the EWS. So EWS and the general category are the same. So we had the 6 attempts. तो वो है कि 6 अटैम्प्ट्स में क्लियर करना होता है। बहुत सारे बच्चों का होता है, मोस्टली 3 to 4 अटैम्प्ट लग जाते हैं यूपीएससी क्लियर करने में। तो मोस्टली ये है कि इतना तो डेडिकेशन चाहिए कि 3-4 अटैम्प्ट तक तो मोटिवेशन होना चाहिए। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? No more questions now. सब समझ में आ गया? I will ask teachers to go in class and ask few questions ना, फिर पता चलेगा किसको समझ में आया किसको नहीं। So still if you have any doubt you can ask. Yes sir. टीचर को भी इंटरेक्ट करना है तो कर सकते हो। यस यस। अभी आपके पास भी टाइम है। Have you know about and motivate know about to become IAS or IPS? Actually, you must have the strong factor कि why I want to join the Indian Administrative Service. What I have the strong motivations. I came from the rural background. I came from the humble family. So मैंने वो समस्याएं देखी हुई है कि कई लोगों को खाना अभी भी नहीं मिलता। आपको नहीं पता होगा, जो फुटपाथ पर जो लोग बसते हैं उनको 2 टाइम खाना नहीं मिलता है। कई ऐसे लोग होते हैं कि उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती है। जब आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप हो जाता है तो आपको नहीं पता चलेगा कि कई सारे भारत में कई सारे बच्चे, कई सारे लोग इतने हैं कि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर वो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिजर्ट पार्ट ऑफ द लैंड। तो वहाँ पर उतनी अच्छी से फार्मिंग नहीं होती है, तो उसकी वजह से जो फार्मर होते हैं पूरे 8 महीने कुछ नहीं करते हैं। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि कई सारी समस्या मैंने अपने जीवन में देखी हुई है। तो मुझे लगा कई सारे और भी लोग हैं जैसे ये समस्या देख रहे हैं, तो इसको जो सॉल्यूशन लाना है तो क्या समाधान हो सकते हैं। 2 समाधान थे, एक तो पॉलिटिक्स में जाकर मैं एमएलए या एमपी बनूं, या दूसरा है कि गवर्नमेंट जॉब लूं और सिविल सर्विस के थ्रू मैं इसको समाधान ला सकता था। तो दैट वाज माय मोटिवेशन कि मैंने 5 साल सतत तैयारी की है। उसकी वजह एक यही थी कि मुझे जीवन में, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना था और दूसरों के जीवन में कुछ प्रभाव, अच्छा सकारात्मक प्रभाव ला सकूं, उसके लिए मैं क्या कर सकता था। तो दैट वाज माय मोटिवेशन। सो यू हैव टू फिगर आउट योर मोटिवेशन। सबके लिए अपना अपना मोटिवेशन अलग होता है। आपको कोई भी सर्विस ज्वाइन करनी है, कोई भी जॉब लेनी है, तो यू मस्ट फाइंड आउट द वाई यू वांट टू ज्वाइन दैट सर्विस। तभी आप कुछ भी चीज़ में मोटिवेटेड हो सकते हो। अच्छा, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो अभी? देखो 9th मोस्टली यूपीएससी की प्रिपरेशन कॉलेज में से स्टार्ट होती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी से आप ध्यान में रख सकते हो। एक चीज़ ये होगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ने की स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो। दूसरा है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसे पढ़ा जा सकता है। मान लीजिए आपने साइंस किया हुआ है या कॉमर्स किया हुआ है, फिर भी जो कोई एक्स्ट्रा सर से बात हुई है तो शायद एक डेडिकेटेड सेशन रखा जाएगा जिसमें जो नॉवेल स्टोरी होती है या जो बाल वार्ता होती है या कोई भी सोशल साइंस रिलेटेड कोई किताब होती है उसे पढ़ने की आप आदत डाल दीजिए। तो जितना अभी से करोगे उतना ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल। जितना आप अभी से डेवलप करोगे तो लाइफ टाइम में कभी भी काम आएगा। स्पेशल यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, जैसे मेरा पब्लिक स्पीकिंग इतना अच्छा था नहीं, तो वो था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उसके साथ ही मैंने तैयारी की है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो आप 12th तक वो कर सकते हो। जैसे ही कॉलेज में आओ तो एक चीज़ ये करनी कि पहले सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी या सीबीएसई जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर दो 6 से 12 स्टैंडर्ड की। एक बार वो रिवाइज कर ली, फिर सोचना कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है। फिर वो पता चला कि मुझे क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन कर दीजिए। फिर उसके बाद वो आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना है। जैसे मैं अपना शेड्यूल बताया, मेरा शेड्यूल इतना टाइट क्यों था रीडिंग के साथ रिलेटेड, क्योंकि मेरी कंपटीशन आईआईटी वाले बच्चों से थी। जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं वो दे आर वेरी स्मार्ट, तो उनसे मुझे कॉम्पीट करना है। तो मुझे मान लीजिए वो 8 घंटे पढ़ रहे हो तो मुझे 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से था कि मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए, मुझे बस पढ़ना ही था। तो आप एटलीस्ट वो हो सकता है कि 8 से 10 घंटे की जो फोकस स्टडी होती है वो आपको डेवलप करनी होगी। दैट इज़ द शेड्यूल फॉर यूपीएससी। ओके, यस। Sir, now, hello. So now you become an IAS officer. Hmm. What do you think
the sector in which you will work, and what, in your opinion, is the major problem of India that we are facing currently? Actually, I have given the 4 attempts. Okay. I have reached till mains, Hmm. but unfortunately not able to clear it. Hmm. But what do you think the problem that we are facing right now? How you will So problem facing in the preparation level or in the society? in a country? In the country, okay. So the first questions related to in which sector I would participate or I would like to work. That is the what is the my major motivation for joining the UPSC? That is the agriculture. I came from the agriculture background. So if I get a chance to become the agriculture secretary, so that would be my final goal to become. So apart from that, if I belong to I be any district collector of any district, the major thing about the society, the main two pillar of the society is the education and the health. Still, we have completed the 75 years of the independence. Still, we are lacking in the two sector, that is the education and the health. So I am very keen and very enthusiastic to join the civil service and specially work in the education and the health sector. Thank you. Yes. What are the main subjects that we need to focus for exam? Yes. First, I will list down the what are the subject you have to study. You can sit. What are the subject you have to study for the UPSC? Just count it down. First is the culture. Second is the history, society, geography, polity, international relations, governance, economy, agriculture, security, science and technology, environment, disaster management, ethics, public administration and so many. So ऐसा है कि कुछ बचा ही नहीं है. सो एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी फॉर द यूपीएससी. ऐसा इसलिए कि जब भी आप आईएएस बनोगे या आईपीएस बनोगे या कोई भी ऑफिसर बनोगे, आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कोई डील नहीं करना है. आपको पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और वो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको सभी सब्जेक्ट का जनरल अवेयरनेस होगा. तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सोशल साइंस में आप सब्जेक्ट पढ़ते हो अभी 9th और 10th में, तो वो सबसे प्राइमरी सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि यूपीएससी बेसिकली ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, पर मोस्टली पास साइंस और कॉमर्स वाले ही होते हैं. तो जो भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है वो सभी आपको पढ़ने होंगे. यस मैम. यस. So what was your inspiration during your struggle days? I already told about my, you can sit. I already told about my major inspirations that I came from the very humble backgrounds. सो मेरे मम्मी पापा मतलब फार्मिंग से बिलोंग करते तो उतना कुछ था नहीं. आपके पास कुछ होगा, शायद आपके मम्मी पापा बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको ऐसा होगा कि कुछ ये कर रहा हूँ, शायद ये नहीं होगा तो मैं अपना बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा. अब मेरे पास कुछ था ही नहीं, थोड़ी सी ज़मीन थी, तो वो था कि मुझे फार्मिंग तो करनी नहीं थी. तो वो था कि आपने सभी कुछ जीवन में सब कुछ दाव पर लगा लिया है, तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती.